The first panelist, Dr. Jawahar Suri Sethi, is an eminent education and child psychologist, thinker, TED speaker, and best-selling author and an innovator. He is a doctorate in psychology from the University of Washington. He has been lately adjudged as one of the top 24 policy makers of India by leading daily in New Indian Express. He has been bestowed the NYT Da Vinci Innovator title for the innovations in social education to help uplift the disadvantaged. His career yatra to the Mofussil and tribal areas of India and helping 1 lakh children every year find a meaningful career to be able to grow and sustain not just their education but later support the families have been supported by Tata CSR, Jindal Steel, Rungta Group, Dainik Bhaskar and Ministry of School Education of many states. He advises the Government of India on policy issues and innovations in education, startups and youth affairs, known worldwide as Think Professor for his art of thinking. He engages with 2.54 lakh children and parents across the globe through the UN expedition called Explora, Exploring the Minds of the Youth. His 2 best-selling parenting guides, Mama and Me, for parents of kids aged newborn to 5 years, having sold more than 1.7 million copies worldwide, and Go to Hell or Come to Me, for parents of teens, released last year. His exemplary social enterprises have like My Beti for the girl child, Religion of Youth for youth and Happier for the happiness of the world have been applauded by the UN and included in the SDG report in 2017-18. His innovation, Think curriculum, for which he has been awarded an honorary doctorate by Columbia University, fosters thinking and learning and has been funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. So we are extremely honored and privileged to have you as panelists. Our second panelist, Mr. Subhranshu Chaudhary, a Knight International Journalism Fellow, a BBC South Asia producer for 10 years and a Guardian correspondent for 2 years. Mr. Chaudhary had all the experience of high-end journalism. He needed to point out the faults in its practice. At first, he served as a media trainer for the BBC World Service Trust, the United Nations, and Indian universities. He distilled to young journalists his advice to be a better journalist. What did that mean to him? It meant being democratic. Although this adjective has as many meanings as the word journalism, Chaudhary claims one should start from the people he is reporting on. In fact, he realized this when he returned to his native Chhattisgarh, where the population stricken by the struggle between Maoists and the police were ranting against the imprecision and superficiality of the news reports on the conflict. In an effort to go beyond conscious propagandas and unconscious shortcomings of media structures, Subhranshu Chaudhary is on a mission to revolutionize the production and consumption of information. Welcome, sir. Welcome to be a panelist. Our third panelist is our Tollywood actor, scriptwriter, Mr. Anuj Sharma. I've spoken in detail about him in the beginning. We're extremely privileged to have you as our third panelist. Mahendra Mukimji is our moderator today. So may I please invite you on the dais to conduct this panel discussion. Ladies and gentlemen, Mahendra Mukimji is a senior management professional at 7 AM in Mantras. He's on a mission to help each individual realize his or her dream and work towards fulfilling it. As a senior management professional,
He has an experience of more than 30 years in the field of manufacturing and is a renowned name in iron and steel industry. He is a nationally renowned motivational speaker, author, anchor, coach and trainer. So ladies and gentlemen, it's going to be a panel discussion on Naxalism and development. Thank you. Request moderator to please set the time. Yes. So. So मैं नेक्सलिज्म पर गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करूँ उसके पहले पूरे देश में, जैसे कि पहले सेशन में राम माधव जी कह रहे थे ये बात, और हम सब भी इससे इनकाउंटर होते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं अपने बारे में जब इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस शहर से हैं, इस स्टेट से हैं, तो ऐसे ऊपर से नीचे तक हमारे बदन को देखते हैं कि कहीं गोली का निशान तो नहीं। ऐसा मानकर चलते हैं लोग कि शायद छत्तीसगढ़ में चारों तरफ गोलियां चल रही होगी, और उसके पीछे पता नहीं ये लोग कैसे इतने खुश हैं और यहाँ घूमने चल गए। एक बार तो बहुत दिलचस्प वाकया हुआ, मैं विदेश से लौट रहा था और दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब मैं बाहर अपने लगेज का वेट कर रहा था तो वहाँ एक फॉरेन फैमिली थी और वो हमारे यहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल को देख के थोड़े बेचैन हो रहे थे। मैं उनकी परेशानी समझा, मैंने उनसे पूछा क्या बाहर कोई नक्सल अटैक होने वाला है। मैंने कहा यहाँ दिल्ली में नक्सल अटैक हमने बहुत पढ़ा है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में एक रेड कॉरिडोर बन गया है और जहाँ नक्सलिज्म है, तो क्या वो दिल्ली तक आ गया? तो कहने का सारा मतलब ये है कि किस तरह ये समस्या बाय एंड लार्ज मीडिया के थ्रू सतही स्तर पर देश और दुनिया के लोगों के दिमाग में कब्जा करता है। ये जैसे राम माधव जी कह रहे थे धर्मनिरपेक्षता के बारे में कि डॉयस के ऊपर क्या लिखा हुआ है और लोग डिबेट किस बात पर कर रहे हैं। हमारे पास डेफिनेशन तक नहीं है कि सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म सापेक्षता क्या है, और 70 सालों से हम डिबेट कर रहे हैं। गांव-वश वही हालत नक्सलाइट आंदोलन और इससे जुड़े हुए इलाकों को लेकर भी हो रही है। मैं आज की बातचीत का सिलसिला हमारे डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी साहब से कर रहा हूँ, क्योंकि वो एजुकेशन की फील्ड में हैं और वो कुछ ऐसा सोचते हैं और उनकी सोच से मुतासर होकर आने वाली पीढ़ियाँ सोचती है। तो वो क्या सोचते हैं छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में ये सब जो चल रहा है, इसमें शिक्षा के थ्रू क्या हो सकता है, किस तरह हम एक नया नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि हम बिल्कुल उल्टा कर दिए हैं डिस्कशन में कि हम पहले सॉल्यूशंस की बात करें। बहुत अच्छी। मुझे लगता है कि एक पीढ़ी, दो पीढ़ी 57, 67 के आसपास ये डिकेड में शुरू हुआ था नक्सलवादी, और आज हम पहुंच गए हैं। और आज की पीढ़ी अगर ये सॉल्यूशन ही हम चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है जो 60-65%, वो जितना हम सोचते हैं उतना बेवकूफ़ है, और वो खुदगर्ज भी है कि वो अपने बारे में अच्छा सोचता है, समाज के बारे में अच्छा सोचता है। तो उनको अगर हम इस नक्सलाइट मूवमेंट से हम एलिमिनेट कर पाए, तो एक ऐसा गैप पैदा होता है जिसमें सारा नक्सलाइट मूवमेंट 50-55 की एज से ऊपर जा रहा है। उनका लीडरशिप स्पेशली उस एज रेंज में है, और हो सकता है वो आज नहीं तो कल एलिमिनेट हो। तो अगर हम एक गैप पैदा कर सकें, और वो गैप पैदा कर सकता है इन यूथ को एजुकेट करके, इन यूथ के लिए स्किलिंग करके, इन यूथ को एम्प्लॉयमेंट देंगे, और इन यूथ को एक ऐसा सपना दिखाते कि भारत में सिर्फ नक्सलाइट मूवमेंट नहीं है जो दिखाया जाता है। हाँ, उस दुनिया के बाहर की दुनिया अगर हम दिखा सकें तो दैट इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन। आप मिलिट्री छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, लेकिन अगली जनरेशन को हम एम्पावर कर दें, और एजुकेशन इज अ टूल फॉर दैट, एम्प्लॉयमेंट इज अ टूल फॉर दैट। आई थिंक दैट्स द बेस्ट। बहुत सही। ये मैंने पहले सॉल्यूशन की बात इसलिए इस नैरेटिव को मैं ओपन करना चाहता था क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार इस प्रॉब्लम पर बहुत बात, मीडिया भी इस प्रॉब्लम पर, नेशनल न्यूज़ पर तभी बात करता है जिस दिन हमारी गोली चलती है, जिस दिन कोई कैजुअलिटी होती है। उसके अलावा कभी मीडिया को फुर्सत नहीं होती कि वो नक्सलिज्म पर बात करे। तो मैं अब मुखातिब हो रहा हूँ सुभांशु चौधरी साहब की तरफ, जिन्होंने बहुत करीब से सारे परिदृश्य को देखा है, जिसको हम लोग कभी कभार
किश्तों में या छोटी सी बाइट्स में देखते हैं। आपने उसे देखा है, उसको रिपोर्ट किया है, तो आप एक टोटलिटी में क्या कहना चाहते हैं अब 2021 में खड़े होकर, जबकि ये भी एक काफी बड़ी और पुरानी समस्या हो चुकी है? उत्तर यहीं पर लिखा हुआ है, कनेक्ट, कोलैबोरेट, इंटीग्रेट। तो राम माधव जी आंध्र प्रदेश से हैं, मैं बंगाली, नक्सलवाड़ी ये आंध्र प्रदेश से हैं, वी आर द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ जो जिसको हम नक्सलिज्म आजकल माओवाद भी कहते हैं, एक इम्पोर्टेड समस्या है, पर एक बड़ी समस्या है। छत्तीसगढ़ के अंदर में एक इजराइल हम लोग बहुत समय नहीं समझते, जिस पर पूरा रेड आतंक अगर उसको कहते हैं, उसका कब्जा है। लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर इजराइल से छोटा है। तो ये समस्या छोटी नहीं है, पर कनेक्ट हम कैसे करें? और अनुज शर्मा जी, शायद अनुज भाई इसका सोल्यूशन है। छत्तीसगढ़ में 2 डिजिट्स हैं, 3 और 6। एक 3 इधर देख रहा है, 6 इधर देख रहा है। यहाँ पे 2 समुदाय हैं, ठीक है, रेस और हम सब एक हैं, एक ही राष्ट्र है, पर जिसको हम वनवासी कहते हैं वो एक तरफ देख रहा है। जैसे मैं बस्तर में रहता हूँ, तो जैसे राम माधव जी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं हम इंडिया जा रहे हैं, कश्मीर के लोग कह रहे हैं हम इंडिया जा रहे हैं, बस्तर के लोग कहते हैं हम छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। देयर इज नो कनेक्ट। सो आपने जो कहा कि कश्मीर की वो भूमि नहीं, वो लोग हमारे हैं, तो क्या वो कनेक्ट बनाने पर हम काम शुरू कर सकते हैं? इसको हम लोगों ने एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सोच रखा है। ये माओइज्म प्रॉब्लम नहीं है, ये 1+99 प्रॉब्लम। 1 are these Bengalis and these Andhra people. It's mainly Andhra people. So we have a collective responsibility to work on these 99 who have joined them, and it has become India's biggest internal security problem. उन 99 से हमने कभी कनेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की। आपने कहा लैंग्वेज, वहाँ की भाषा गोंडी है, उस भाषा में हमने कभी इन्वेस्ट ही नहीं किया, हम उनके साथ बात ही नहीं कर सकते हैं। तो जो वनवासी है, तो अगर समाधान ढूंढना है तो इस समस्या को पहले समझना है। तो 99 में 2 तरह के वनवासी हैं, जिनको हम आदिवासी भी कहते हैं। एक सड़क किनारे रहने वाला और एक डीप जंगल में रहने वाला। पूरे 40 साल के माओवादी आंदोलन में एक स्कूल पास आदिवासी ज्वाइन किया, कला में पहाड़ से, आजकल राजनांदगांव में रहते हैं। बाकी 100% या 99.99% स्कूल ड्रॉप आउट्स। अपने एजुकेशन की बात, ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं? गुरु जी हिंदी में बोलते हैं, बच्चा वो नहीं समझता है, वो कनेक्ट। वो गुरु जी आदिवासी है ज़्यादातर समय, और वो जो सड़क के किनारे आ गया, जो हिंदी सीख गया, वो अपनी भाषा भूल जाता है। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस, वी नीड टू कनेक्ट विद देम। और बस्तर, जो दक्षिण बस्तर कहा, एक राम की और एक माधव की राह देख रहा। ये बात मैं आज से 3 साल पहले भी नहीं सोचा। ये 40 साल पुरानी समस्या है यहाँ पर, 1980 में, जस्ट 40 ईयर्स है। ये बहुत ऊपर नीचे हुआ है, और राम माधव जी हैं तो मैं जानबूझ के बोलना चाहता हूँ कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसको हम कहते हैं, और एक्सट्रीमिज्म नहीं बोलूँगा, पर RSS राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, या कह सकते हैं। यू आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर माओइस्ट मूवमेंट इन छत्तीसगढ़। जब समय मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ में जो माओवादी समस्या है, उसका बड़ा कारण RSS है, बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। तो उसका हम कहते हैं कि वही समस्या है, वही समाधान। हम ही अच्छे हैं, हम ही बुरे हैं, उसका सोल्यूशन भी नहीं है। और वो जिम्मेदारी राम माधव जी आपकी है। आपने कश्मीर में काम किया, आपने नॉर्थ ईस्ट को ठीक किया, एक राम और एक माधव की राह बस्तर देखा। आपने बातचीत के दौरान एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठा दिया, हालांकि वो बहुत एलिब्रेट हो सकता है उसका आंसर, लेकिन फिर भी चूंकि आपने इशारा किया है, तो आप कैसे ये बात कहते हैं कि RSS या और जो इस तरह के एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं वो इस समस्या की जड़ है?
क्योंकि अपेरेंटली तो हम जैसे कि मासेस में ये देखते हैं कि जो राइट विंग है, जो स्वदेश की बात करता है, एक राष्ट्र की बात करता है, और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति के बारे में उनका नारा होता है कि तुम और मैं एक रक्त, हम रक्त से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो बड़ी गहरी है, आपस में जुड़ी हुई है। पर आप ये इशारा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको समझाइए। थोड़ा सा मुझे समय देना पड़ेगा आपको। जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सलवाद है वो इंडिजिनस नहीं है। नक्सलवाड़ी में बड़ा इंडिजिनस था, और वो कहते हैं रेवोल्यूशन वहाँ होगा जहाँ पर कॉन्शियसनेस, वो आंध्र में, वो तो तेलंगाना में है, बंगाल में है, बिहार में है। लेकिन आपको मालूम है 1967 में शुरू हुआ और वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, सिद्धार्थ चंद्र राय चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 5 साल में उसको खत्म कर दिया। इतनी जोर की बात पड़ी, वो जो लीडर्स थे, कुछ आंध्र से थे, कुछ तमिलनाडु से थे, कुछ कश्मीर से थे, वो 5 साल तक मिल नहीं पाए। 1977 में वो पहली बार मिले। कहाँ मिले? जहाँ से राम माधव जी आते हैं, नागपुर में, जहाँ सभी जाते हैं, अम्बेडकर भी जाते हैं, गांधी भी जाते हैं। वहाँ मिलकर उन्होंने ये खोजने की कोशिश की कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि हमने 5 साल में ही हम खत्म हो गए। तो उसका जो सोल्यूशन उन्होंने ढूंढा वो है यहाँ पर। उन्होंने, माओ ने ये बोला था कि आपको प्रोट्रैक्टेड वॉर, उनकी भाषा होती है, लंबी लड़ाई है, अप्स एंड डाउन्स होंगे। जब आप डाउन हैं तो आपको सारे कैपिटल को एक्सपोज नहीं कर देना है, इसको छुपने की जगह चाहिए। तो छत्तीसगढ़ छुपने की जगह की तरफ छत्तीसगढ़ नहीं था। दंडकारण्य प्रांत को, एंड दे राइट इट वेरी वेरी, वो साइंटिफिक लोग, आप उनके विज्ञान से सहमत हुए या सकते हैं। आपको बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि समय कम है, तो लेकिन आपका जो इशारा कि ये जो राष्ट्रवाद है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसको थोड़ा सा आंसर करिए। बाकी तो देखिए, जो आप 1967 से पूरे नेशनलिज्म की हिस्ट्री के बारे में कह रहे हैं, तो वो तो है कि भाई वो किसानों के लिए शुरू हुआ था, जमींदारों के अगेंस्ट में शुरू हुआ था, लेकिन अब इतने सालों में वो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक निकल गया है। पर अब हम यहाँ पर 2021 में पहुँच के कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते, अब फिनिश नहीं कर सकते, क्योंकि फिनिश तो एनिमी को किया जाता है। फिनिश कर सकते हैं, इस समस्या को फिनिश कर सकते हैं। 80 में वो यहाँ राजनीति करने नहीं आए थे, वो यहाँ रिवोल्यूशन करने नहीं आए थे, वो यहाँ छुपने की जगह बनाने आए थे। पर 1990 में यहाँ बीजेपी की सरकार आई और उसमें मध्य प्रदेश था, और उनको ये भी समझ थी कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस को साथ लिया, उन्होंने सीपीआई को साथ लिया और एक जन जागरण अभियान शुरू किया, और ये तय किया गया कि जो भी, जिसने भी माओवादी की मदद की है, चाय पिलाया, रास्ता दिखाया, पिटाई की। That was the start of Maoist movement in this country, in this state. It is not pull, it is push. वही प्रयोग फिर किया गया 2003 में, जिसको हम सल्ला जोड़ू कहते हैं। तो हमने धक्का मारा है। We have not given chance to be a fence sitter. जब हिंदू मुस्लिम का दंगा होता है, मुझे पसंद हो या चले, मैं अगर हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हमने पुश किया है लोगों को, वो चीज़ बदल रही है 1915-16 के बाद। आज वहाँ का आदिवासी ये कह रहा है, जो जंगल में रहने वाला, गोंडी स्पीकिंग, स्कूल ड्रॉप आउट, जो उसका कैचमेंट एरिया है, उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए, वो वहाँ से बाहर निकलना चाहता है। सरेंडर्स पहली बार शुरू हुए, इससे पहले तेलुगु लोग सरेंडर करते थे, उनका चीफ मिनिस्टर भी सरेंडर किया, जिसको सेक्रेटरी कहते हैं। पर आदिवासी एट्रिशन रेट 33% था हमेशा, और वो कोई पुलिस के पास नहीं जाता था, वो एक हेल्पिंग हैंड चाहता है। तो जो भी ये काम करेगा अगले 50 साल तक वहाँ बस्तर में चुनाव नहीं हारेगा। आदिवासी को ये समझ में आ गया है कि रास्ता उन्होंने चुना था, क्योंकि कोई उनसे बात ही नहीं करता। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ कम्युनिकेशन, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ होपलेसनेस, जिसको 99% हानि है, उससे हमको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उसको सुनने की ज़रूरत है। वो जान तारीफ कुछ नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ सम्मान मांग रहा है, इज्जत मांग रहा है कि हम बराबरी से उनसे बात करें, हम उनका सम्मान करें, वो हमारा सम्मान करें। जी। और शांति बिल्कुल बहुत तेजी से लाई जा सकती है। सुभाष, मेरे ख्याल से आपके इस आंसर से ऑडियंस जरूर इस बात को क्लियरिटी में समझ रहा है कि दरअसल कहीं ना कहीं सुनने की वॉइसेस की जरूरत है, और सुनकर समझकर इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन जब भी कभी, चूंकि शासन में कोई भी रहा हो,
जो भी शासन में आता है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर गोलियां चल रही है, अगर सड़क तोड़ी जा रही है, अगर टावर गिराए जा रहे हैं, तो उसको बैठाया इसलिए जाता है कि वो इन सबकी रक्षा करे। तो ये रक्षा करने के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जब फायरिंग चल रही है, गोली पहचानती नहीं कि अपराधी कौन है और इनोसेंट मारा जाता है। खैर, आप भी इशारा कर रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार की तरफ, और न सिर्फ वो फिल्मों में काम करते हैं बल्कि फ्लोर पर जाकर और एक संस्कृति के एम्बेसडर के रूप में न सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ अगर चीजों को बदलने का प्रयास करेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी ये है कि जो शुभ्रांशु जी भी बोल रहे थे कि हमें उनको समझने की जरूरत है और उनकी भाषा में अपनी बात को जब हम रख पाएंगे तब उन्हें इस बात का पता चल पाएगा कि उनके लिए क्या हितकर है। मुझे ऐसा मौका लगा कि मैं उन जगहों तक जा पाया, क्योंकि मैं कुछ संस्थाएं जिनके लिए काम करता हूँ, तो जहाँ सड़कें खत्म हो जाती हैं वहां तक जाने का अवसर मिला। शुभ्रांशु जी तो पूरा बस्तर घुमाए होंगे, लेकिन मुझे भी एक मौका मिला वहाँ कुछ जानने समझने का। आप नारायणपुर जाइए और आप देखिए कि रामकृष्ण मिशन किस तरह से काम करता है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आप सभी को। रामकृष्ण मिशन भी हॉस्पिटल चलाता है और सरकार भी हॉस्पिटल चलाती है नारायणपुर में, लेकिन जो वहाँ का आदिवासी है वो नारायणपुर मिशन के हॉस्पिटल में इलाज कराना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उससे कोई कड़ी आवाज में बात नहीं करता है, उसका सम्मान करता है, प्यार से बात करता है। और जब सरकारी हॉस्पिटल में वो इलाज कराता है तो ड्रिप सलाइन लगाए हॉस्पिटल से भाग जाता है और रास्ते में निकालता है। ऐसी घटनाएं होती है क्योंकि उसको जो एक आदर या एक जो प्यार की जरूरत है वो उस सिस्टम से नहीं मिल रहा। वहां हम अपने तरीके से बात करना चाहते हैं, और वहीं दूसरी जगह जब आप उसकी भाषा में उसके तरीके से उसे ट्रीट करते हैं और अपनी बात को उस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं तो उसका असर अलग होता है। तो मुझे जो सबसे बड़ी समस्या लगती है इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में कि हमारे वो जो कम्युनिकेशन और कनेक्ट की बात जो सुधांशु जी बोल रहे हैं वो उसका तरीका बदलना पड़ेगा। वो रेडियो सुन रहे हैं तो उनको रेडियो बोलने में सुनाई देना चाहिए, उनको हमारी बातें उन तक पहुंचनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है वो कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है जो इस समस्या को खत्म करने के लिए कमजोर पड़ रही है। आप दोनों की बातों से मैं सॉल्यूशन पूछता हूँ डॉक्टर साहब से। बहुत सारी सरकारों को आप एडवाइस देते हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हम सब कह रहे हैं कि एक तरीका होना चाहिए कनेक्ट होने का, कम्युनिकेट होने का, उनकी भावनाओं को समझने का। ये तरीका क्या हो? देखिए, मैं शुभ्रांशु जी की बात से इत्तेफाक इस बात में नहीं रखता हूँ। किसी भी पार्टी को या सरकार को जिम्मेदार ठहराना इट्स नॉट राइट, पहली। दूसरी बात, मैं भी 90 से नक्सली इलाकों में काम किया, सैनिटरी नैपकिन के इस विषय में काम किया, गर्ल एजुकेशन के विषय में काम किया। कुछ सरकारों ने, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, टीडीपी की हो, लेकिन सोल्यूशन बेहतरीन है। इट इज द लीडरशिप इशू। दूसरी चीज इसमें यह है कि जब हम सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन ऑफ, जब छुपने के लिए आए थे ये बात कर रहे हैं बहुत पहले, लेकिन अब दो तरह के नक्सली हो गए। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं जो इंडस्ट्री से पैसा निकालते हैं, क्या वो नक्सली नहीं है? क्या उनके ऊपर दंड नहीं दिया जाए? या सब सीधे साधे वनवासी? और जब वनवासियों की भी बात करते हैं तो वनवासी आश्रम और आश्रमशालाएं जो संस्थाएं चलाती हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है, जहां एकल विद्यालय चलता है। दे हैव डन अ फैंटास्टिक वर्क इन दीज एरिया। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज नो लाइट एट ऑल इन दिस। ऐसा पेंट करना भी कि रेड कॉरिडोर पूरा रेड में मानता नहीं। वो छत्तीसगढ़ में आज की तारीख में एक कोना जो है जो प्रभावित है वो कोना ही है। रायपुर में हमने नक्सली देखा ही नहीं। भले ही कुछ भी आप बाहर पेंट कर दो या मीडिया कुछ भी कर। दूसरी चीज, जहाँ पे ये आधा नक्सली जो एक्सटॉर्शन करता है, जो अपने जेबों में पैसे भरते हैं, उन लोगों को दंड देने के लिए अगर आदमी का इस्तेमाल करना पड़े तो करना पड़ेगा। उसमें बातचीत वार्तालाप उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनको पैसा चाहिए। आप अगर बोलोगे पीस में बात करूंगा तो उसका पैसा रुक जाएगा, इसलिए वो नहीं चाहता पीस, वो रोड नहीं बनने देना चाहता है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी। और उसके लिए उस भाग को मैं ये बात पे इत्तेफाक रखता हूँ कि जो इनोसेंट आदिवासी है, जो
फॉरेस्ट प्रोड्यूस से अपना काम करता है। मैंने आंध्रा में देखे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कि गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी वहाँ का आंवला जो है वो इतना अच्छा बनाता है कि वो एक्सपोर्ट होता है। आंध्रा में सिर्फ नक्सलिज्म पुलिस ने खत्म नहीं की, आर्मी ने खत्म नहीं की, वहाँ एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमी, ये तीनों पे काम किया गया, तभी ये खत्म हुआ है। और उनको छुपने के लिए यहाँ क्यों आना पड़ा? क्योंकि उन्होंने प्रेम से बात नहीं की, उन्होंने भगाया है। तो उनको तो सोल्यूशन मिली है आंध्रा को। छत्तीसगढ़ में ये प्रॉब्लम शुरू, यहाँ आप बोल रहे हो प्यार से बात करो, यहाँ से हम भगाएंगे गढ़चिरौली जाएगा, तो दैट इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। दोनों ट्रैक हमको चलाने पड़ेंगे कि जो बदमाशी कर रहे हैं उनको मारो, अब जिस तरह से स्कूल में बच्चों को मारते हो, और उस बच्चा जो कि सीधा साधा है उसको पुचकारो, उसको एम्प्लॉयमेंट दो, उसको एजुकेशन दो। तो एक सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता, और इसकी जिम्मेदारी अगर हम पार्टी के हिसाब से करें तो मुझे लगता है ये जिंदगी में कभी होगा नहीं। कांग्रेस बीजेपी करते रहे। बहुत सही। और मैं सोचता हूँ कि आपकी और हमारी सबकी घड़ियों में 2 बज रहा है। समय तो सबकी घड़ी में वही है, लेकिन वक्त सबका अलग अलग चल रहा होता है। No, we have two questions. तो मैं बस यही कह रहा था कि We have two हम questions. फ्लोर की तरफ आ जाते हैं, और फ्लोर से जो भी क्वेश्चन करें वो बहुत प्रिसाइज और ब्रीफ में करें, एक इसमें खत्म कर रहा हूँ मैं। और आखिरी में एक बार ये चाहता हूँ कि अगर हम समय थोड़ा सा बचा लेंगे तो इस पूरे मामले पर मैं चाहूँगा कि राम माधव जी जैसे इतने बड़े थिंकर हमारे बीच में हैं, तो इस पर भी हम उनसे 5 मिनट जरूर सुनेंगे और एनलाइटेड होंगे। अब फ्लोर से एक एक करके आप क्वेश्चन लें, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट अपना क्वेश्चन पूछें। नहीं, मैं थोड़ा सा आपसे जरूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि एक ऐसी स्थापना यहाँ दे दी गई है जिसपे थोड़ी बात करना जरूरी है। और मैं इसलिए भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि पिछले 17 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मेरा PhD भी नक्सल इशू पे ही है, और मैंने पिछले 17 साल में बहुत सारी चीज़ों को देखा है। मैं सबसे पहले जो स्थापना रखी गई उससे पता नहीं सुभ्रांशु जी ने कहाँ और किस वजह से उसको रखा है, उसके पीछे क्या तथ्य है, उस पर अगर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, समस्या इसको नक्सलिज्म को एक सफेद हाथी की तरह जैसे कहते हैं ना, जो भी बोल दे वो सही है कहीं से भी। दरअसल वो चीज है नहीं, है इसलिए नहीं। देखिए, समस्या वहां पर संवाद की है, जरूर है, निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ। कनेक्ट करने की समस्या है की समस्या है। एक महत्वपूर्ण बात शायद पता नहीं आपको पता है, मैं जब प्रचंड का इंटरव्यू कर रहा था नेपाल में जाकर के अपने रिसर्च के सिलसिले में, तो उन्होंने ऑन कैमरा स्वीकार किया था कि वो 3 बार आकर के बस्तर में 3 बार प्रशिक्षण के लिए आए थे। कैमरा पे आज भी है मेरे पास वो इंटरव्यू पूरा। इतनी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वो काम करते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। किसी RSS ने या बीजेपी ने या कांग्रेस ने फैला दिया वो समस्या नहीं है भाई, ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम है जिसपे इंटरनेशनली काम होता है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में। समस्या इस बात की है कि आज आप एक तरफ से अगर रोजमार में घुसेंगे तो दूसरी तरफ आप आंध्रा में निकलेंगे कि उड़ीसा में निकलेंगे कि महाराष्ट्र में निकलेंगे, इसका आपको पता नहीं है। प्लीज समझो, ठीक है। तो ये इस तरह की समस्या है। और रेड कॉरिडोर का पूरा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझिए कि किस तरीके से पूरा रेड कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है, और उसमें छत्तीसगढ़ कहाँ पहुंचता है, और अबूझ मार्ग किस तरीके से उसका ये सेंटर है, उसका मुख्यालय किस तरीके से है, उसको हमको समझने की जरूरत है। मेरा सवाल यही है सुभ्रांशु जी से कि उसको क्लियर करें कि किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने आपने कहा था वो बहुत क्लियर नहीं हुआ है, उसको बहुत क्लियर करिए कि किस तरीके से RSS इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा समय लेना पड़ेगा। 80 में वो आए थे, 49 लोग आए थे। गुंडापल्ली सीतारमैया जिम्मेदारी दी गई थी कि ये क्लियर एरिया खोजा जाए। उन्होंने 7 लोग भेजे। 1980 में 49 लोग थे, 1990 में 25 बन गए, 24 लोग छोड़ के चले गए। कोई आदिवासी, कोई बस्तर वाला उसे नहीं मिला, उन्होंने जोड़ने की कोशिश ही नहीं। उनको बोला गया था, इंस्ट्रक्शंस थे, वी आर नॉट गोइंग टू डू पॉलिटिक्स,
Revolution will not happen here. 90 में 2 चीजें बदली। गुंडापल्ली सीतारमैया को भगा दिया गया, उनकी पार्टी से एक्सपल्शन किया गया, क्योंकि नए नेता आए। उन्होंने कहा कि उनका जो सोचना था कि आदिवासी do not have political consciousनess, revolution will not happen here, क्योंकि उनके लिए दिक्कत हुई कि आंध्र वो वापस नहीं जा पाए, तो उन्होंने यहाँ रिवोल्यूशन करना शुरू किया। तो कांग्रेस के बारे में, जैसे मैंने बीजेपी के बारे में कहा, उसके बारे में कहूँ, हम उसको कांग्रेस पार्टी कहते हैं। खाओ पियो और खिलाओ पियो, नहीं खाओ और खाने दो। तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं था, पर बीजेपी ने सोचा इसके बारे में, इट बैकफायर। तो इट वाज नॉट फुल। मैंने सैकड़ों मैंने उनके ऊपर किताब लिखी, तो महीनों मैं उनके साथ रहता था। कोई नहीं मिला जो उनसे आकर्षित होके गया। मोस्ट 99% पीपल वेंट बाय पुश, कि हमने उनके पिता को मार दिया, हमने जो आप बात कर रहे हैं, हमने पुश किया है उनको, और वो पुश हमारे पुश से वो जन जागरण अभियान 1 और उसी की पुनरावृत्ति जन जागरण 2 से भी। इसके माओवादी 10 गुना बढ़े। तो उन्होंने, उनका जो बड़ा नेता है, उन्होंने इंटरनल अखबार में उन्होंने पढ़ा कि होगा शायद लिखा, थैंक यू सर बाजू। मैं समझ रहा हूँ कि मैं इसको और 2 लाइन में क्लियर कर सकता हूँ जो आप कहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन उसमें पहला भी जन जागरण अभियान, दूसरा भी जन जागरण अभियान और तीसरा भी जन जागरण अभियान, उसके नेता तो कौन थे आपको मालूम है? महेंद्र शर्मा थे, के लोग थे। मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ जी, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, जो मुख्य बात सामने उभर कर आई है वो भाई साहब ने भी कही, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय गुजारा इसलिए कि बीजेपी ने ट्राई किया रोकने का। 2 तरीका होता है किसी डिजीज को, और खासतौर से कैंसर को फाइट करने का। एक तो उसको बढ़ने दिया जाए, जैसे आप कह रहे थे खाओ पियो और खाने दो, और दूसरा तरीका था किसी ने रिवील किया। रिवील करने में कई बार ऐसा होता है, जब रेस्पॉन्ड करते हैं तो वो बहुत और तेजी से फैल जाता है। तो हम डॉक्टर को दोषी नहीं ठहरा सकते, वो दोष उस रोग का है, उस तरफ को इशारा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से कुछ कहना चाहते हो कि बीजेपी ने बढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। चूंकि उन्होंने कोशिश की कि ये खत्म हो जाए, अब वो बढ़ गया तो उसको हैंडल कर रहे हैं। और ये विश्वव्यापी समस्या है, जैसे आतंकवाद है। आतंकवाद को अगर अमेरिका जैसा देश, जो सैटेलाइट से एक अकेले आदमी को किसी देश के मकान के कमरे में ढूंढ सकता है, वो भी अपने यहाँ खत्म नहीं कर पाता। यूके जैसा, जिनके हर ट्रेन के बोगी में कैमरे लगे हुए हैं, उनकी ट्रेन में भी बम फट जाता है। तो ये इतना आसान नहीं है किसी के ऊपर इशारा करके उसको रिस्पॉन्सिबल है या वो ठीक नहीं कर पाया। एक बहुत बड़ी चीज है जो फैल गई है, कैसे सिमटेगी, इसके लिए हम सबकी संवेदना भी है और जागरूकता भी। अगला क्वेश्चन मेरा भी वही संजय के सवाल को ही मैं भी आगे बढ़ाऊंगा कि एक तो शुभ्रांशु जी, आपकी पुस्तक पढ़ के मुझे लगा था कि आपने वाकई में कुछ काम किया होगा नक्सल एरियाज में, लेकिन जिस तरह आप एनजीओ चलाते हैं, जिस तरह से लोग आपकी विचारधारा को जानते हैं, उससे मैं समझ रहा था कि कहीं न कहीं कोई स्थापित आप करेंगे। आरएसएस को सीधे सीधे ब्लेम करना, बीजेपी का तो समझ में आता है 15 साल राज की है, उसके समय में कुछ कमियां नहीं होगी। आरएसएस की कैसे आपने ब्लेम कर दिया कि आरएसएस जिम्मेदार है? आप जानते हैं, आपने बस्तर घूमा होगा, कितना आरएसएस कितने सालों से वहां सेवा कार्य चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहां पर स्कूल चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, सेवा भारती के काम चल रहे हैं, और सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि आदिवासी वनवासियों के बीच काम है। नक्सल जो वाड़ी से आंदोलन शुरू हुआ, आप तो बंगाल से हैं, जरा बताइए कितने आरएसएस के लीडर नक्सलवाड़ी आंदोलन में थे? आप नाम एक भी गिना दीजिए, आप एक भी एलिगेशन बता दीजिए कि आरएसएस यहां पर जिम्मेदार है। यू आर टोटली, दिस एलिगेशन इज सस्पेंडेड। ये बिल्कुल गलत आरोप है। आप एक पॉलिटिकली गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस भी जिम्मेदार है, अभी आपने कहा, फिर आपने कहा बीजेपी भी जिम्मेदार है, फिर आप कह रहे हैं आरएसएस भी जिम्मेदार है। आप ये नहीं कह रहे कि कम्युनिस्ट जिम्मेदार है, आप ये नहीं कह रहे कि जो लोग हथियारों की खून से होली खेल रहे हैं वो सीधे तौर पर लेनिन और मार्क्स से प्रेरित लोग हैं। आप ये नहीं कह रहे। आप आरएसएस कैसे ब्लेम कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। आप अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, इतनी पुस्तकें आपकी है, आपके वहाँ पे काफी रेडियो पर आपने काम किया है, ऐसे जर्नलिस्ट में समझ सकता हूँ कि आपने वहाँ पर काम किया है, लेकिन आरएसएस को सीधे ब्लेम करना, पता नहीं इसके पीछे आप किन सवालों को लेकर आए, क्या मजबूरियां हो सकती हैं, जरा मुझे बता दीजिए, यहाँ सब लोग समझे तो सही। ये पहले आप ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जिन्होंने आपने कहा कि आरएसएस जिम्मेदार है, और एक इंटेलेक्चुअल के तौर पर आप ये बता नहीं रहे
आप दे चुके हैं कि ठीक है किसी से कोई गलती हुई है। मैंने भी यही कहा नहीं, आप कहिए कि ये गलत कहा मैंने। आरएसएस इज नॉट रिस्पांसिबल। हाउ इज रिस्पांसिबल? You are also responsible. We are collectively responsible. And No, you have left the RSS. Why? डिबेट मत करें। देखिए, मैं आपसे एक बात वही मैं जानना प्लीज माफी चाहूंगा, एक मिनट, एक बात मुझे कह लेने दीजिए कि जैसे आप भाई साहब के मुंह से आरएसएस निकल गया, जानबूझ के मैं उससे क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, जानबूझ के निकल गया। जी, बहुत अच्छी बात। जैसा आपने कह दिया, आप देखेंगे इस देश में तमाम तरह के डिस्कशन में लोग बिना सोचे समझे जाने आरएसएस का नाम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? मैं इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देखता हूं। लेकिन शुभ्रांशु जी से उम्मीद नहीं है। शुभ्रांशु जी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, उन्होंने देश पे काम किया है। आप ऐसे कोर्ट रूम मत बनाइए प्लीज, ये हम डिस्कशन करने बैठे हैं, कोई बात। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप आए दिन जब से टेलीविजन आया है, सारे जितने भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं किसी न किसी चैनल पर आकर अपनी बात करते रहते हैं और सबके बातों में आप एक कॉमन चीज देखे होंगे, वो आराम से एक आरएसएस जैसी संस्था का नाम ले लेते हैं। ये आरएसएस के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि वो विश्व की सबसे बड़ी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लोग शायद 30-35 अलग अलग संगठनों में रहकर ऐसी जगहों में जाके काम करते हैं जहां सरकारें आजादी के 70 साल बाद भी नहीं पहुंची। जो भी कोई कुछ करता है तो उस पर सवाल होता है, उसकी चर्चा होती है, इसीलिए भाई साहब ने भी नाम दिया होगा। तो इसको हम कहीं देते हैं आपको, इसको ज्यादा भूल ना दे प्लीज। आप बोलेंगे तो फिर और तो होगा। आप एक मिनट रुकिए, और कोई क्वेश्चन इस आरएसएस और इसके अलावा हो गया? तो चलता है वही गिरता है, जो काम करता है उसी से गलती होती है, पर उसी से आशा है कि वो सोल्यूशन आएगा। मैं उस पे आना चाहता हूँ। जी। बस्तर आज एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति में है। जो जवाहर जी ने कहा कि एवरेज एज, उन्होंने कहा 55, मुझे लगता है वो 60 है। वो 80 में पहले आए, 90 में उन्होंने बस लोड करके लोगों को यहाँ भेजा, उसके बाद 20-25 लोग आए। तो 90 और 2020 या 21, उन सब की उम्र अभी 60 साल हो गई है। एवरेज एज जैसे आपने कहा 20 का है। सो दे आर ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग, उनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपने एक्सटॉर्शन की बात कही वो शुरू हो रहा है। बस्तर जैसे आप हमारे फोड़ा हुआ है पैर, तो दो तरीके हैं, या आप उसको छोड़ दीजिए अपने आप ठीक हो जाएगा। एक और पॉलिटिकल पार्टी वो वैसे ही करती है, अब कुछ करेंगे ही नहीं तो गलती कैसे होगी? जी जी। बस्तर आप गैंग्रीन सिचुएशन में है। 40 सालों में माओवादियों ने हजारों लड़ाके तैयार किए, कमांडर तैयार किए, पर एक भी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं तैयार किया। उनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी व्यक्ति नहीं है। उनका जो सेंट्रल कमेटी है उसमें 45 लोग हैं, 90% से ज्यादा लड़ाके छत्तीसगढ़ी हैं, एक भी छत्तीसगढ़ी उसमें नहीं है और उसको डिफेंड करते हैं कि हमारे यहाँ कोई रिजर्वेशन पॉलिसी तो है नहीं। हमने कोशिश की लेकिन हम नहीं बना पाए। तो क्या होने वाला है? अब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करनी पड़ सकती नहीं आपने अभी बहुत अच्छी बात कही। अफगानिस्तान के नहीं, आई ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिव। हाँ, मैं एक सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ जो हमने कश्मीर में किया जी। इट कैन बी इक्वली अप्लाइड टू बस्तर जी। पार्टी एनीबॉडी। जब कश्मीर के बॉर्डर में बम गिर रहे थे, स्कूल बंद हो गए। हाँ, जो इन्होंने कहा कि स्कूल में टीचर पढ़ा नहीं रहा, तो व्हाट वी डिड वाज, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक संस्था जिसमें मैं था और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बसेस दिए थे हमें, और वीडियोकॉन ने हमें टीवी VCR दिया, हमें उस समय VCR था। तो हम उसको 2 दिन एक जिले में ले जाते थे और बच्चों को वहाँ बस में आने देते थे और वीडियो के माध्यम से हम स्कूल चलाते थे। इसमें खास बात यह है कि लोकल व्यक्ति जो है उसको हम 1200 रुपये देते थे, जो गोंडी का प्रॉब्लम था वो वहाँ से सॉल्व होता है, उसको रोजगार भी मिलता है, वो उसी भाषा में बात करता है और जो वो लोग पढ़ते हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम 2-2 दिन एक जिले में जाते थे। वो बस में ड्राइवर था, वो पढ़ा लिखा युवा था होकर, और वो जो एक टीचर था जो कंडक्टर भी था वही जाता था, गाँव वाले उसको खिलाते थे। लेकिन बम वाले स्कूलों में ना बिठाकर हमने बसों में बिठाकर 2-2 दिन पढ़ाया। वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अपलॉडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस्तर में हम इस तरह के प्रयोग करते हैं जी और करने देते नहीं हैं। तो ये दिस इज अ सॉल्यूशन, जो लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी,
भाषा की भी प्रॉब्लम। बहुत बढ़िया। तो Sir, I would like to add here, connect वाली जो बात है, I was a part of NGO from Washington. It was called EDC, Education Development Center. वो जब SCRT यहाँ पे लॉन्च हुआ था नया, तो हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाया था एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, इंग्लिश इज फन के नाम से। और डॉक्टर रमन सिंह तब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 2 in 1 पूरे बस्तर, जगदलपुर, सब जगह उसको भिजवाया गया था। और उस एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट को हमने ट्राईलिंगुअल, क्वाड्रीलिंगुअल बनाया था। उसमें गोंडी, हल्बी, अंग्रेजी को हल्बी में ट्रांसलेट करके हमने पहुंचाने की कोशिश की। आई एम एन अकेडमिशियन, और इस तरीके से एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट को अंग्रेजी को हर भाषा के माध्यम से पढ़ाया गया था। दैट वाज अ वेरी बिग एंड वेरी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। एक मैं आपकी बात आपसे फिर सवाल करने के लिए कहूँगा सुभाष चौधरी, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि अनुज एक क्विक लास्ट रिएक्शन दें अपना। जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कश्मीर में एक प्रयोग हुआ कि बसों में क्लासरूम लगाया गया, ये बिल्कुल सच बात है कि पिछले बहुत सालों में सरकारी तौर पर इस तरह के क्रिएटिव प्रयोग कम हुए, लेकिन इसीलिए शायद संघ ने अपनी भूमिका को पहचाना और संघ के हजारों हजार कार्यकर्ता एकल विद्यालय के माध्यम से और वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से हजारों हजार कार्यकर्ता अपना पूरा का पूरा जीवन बस्तर के उन इलाकों में जाकर लगा रहे हैं जहाँ सरकारों ने आज भी, मैं कहना चाहता हूँ, कोई काम नहीं किया। तो ऐसे में एक कलाकार के नाते आप क्या सोचते हैं कि शहर के जो लोग हैं वो भी कभी जाएं जंगलों की तरफ, वनवासियों की तरफ, और उनको ये एहसास कराएं जो राम माधव जी कह रहे थे कि वो कश्मीरी लोग भी हमारे हैं, तो वैसे ही वो बस्तर के जो लोग हैं वो भी हमारे हैं, इसका एहसास कैसे करें, इसकी एक जिम्मेदारी आप बनाएं। नहीं, वो हमारे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में किसी के अंदर ये भावना है कि बस्तर के लोग हमारे नहीं हैं, ऐसा तो मैं तो नहीं मानता हूँ। सारे छत्तीसगढ़िया बस्तर से उतना ही प्यार करते हो, बहुत गर्व के साथ कहते हैं बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक बात है, खासतौर पे मैं शुभ्रांशु जी जैसा बोल रहे थे कि ये जिम्मेदार उसको और मैं नहीं छेड़ना चाहता, लेकिन जब नेपाल में सरकार बदलती, सीताराम येचुरी उस पार्टी का समर्थन करने जाते हैं जो खून खराबा करती है, तो उनकी आलोचना कोई नहीं करता है। और इस तरह के लोग जब यहाँ आके एक्टिविस्ट बन जाते हैं छत्तीसगढ़ आके, और मुझे एक बात का बहुत बड़ा दुख है कि जब मुंबई के होटल ताज में 100 लोग मारे जाते हैं, पूरी दुनिया में हाहाकार बच जाता है, लेकिन एक साथ 73 जवान मारे जाते हैं, वो उतना बड़ा न्यूज नहीं बनता, उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। वो सैकड़ों लोग, तो मुझे लगता है एक मानव के का क्या बॉम्बे में मूल्य अलग है और एक इंसानी जीवन का बस्तर में मूल्य अलग है। यानी हमारी संवेदनशीलता बदल जाती है। जब हम मुंबई की बात करते हैं तो होटल ताज में रहने वाले मनुष्य का जीवन का मूल्य अलग है और बस्तर में मरने वाले एक व्यक्ति के जीवन का मूल्य अलग है। और उस समय जब जैसे ही इन पे कोई एक्शन होता है, सारे आंदोलनकारी सामने आ जाते हैं, एनजीओ सामने आ जाते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता सब सामने आ जाते हैं, लेकिन जब आदिवासियों के साथ वो ज्यादती करते हैं, उन्हें जब बंदूक पकड़ा देते हैं, जब उनकी हत्या करते हैं, तो ये सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता जो है कहीं चुपचाप सो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड अपनाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उसको हमारे समाज की ओर से मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए और उनको वायरल किया जाना चाहिए जो दुमुही बात करते हैं, जो एक तरफा बात करते हैं, और ऐसे लोगों के लिए पूरे प्रदेश को खड़ा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जब सही वक्त आए उनको काउंटर किया जाना चाहिए, उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। आपने शब्द का इस्तेमाल किया वायरल, टेक्नोलॉजी का ये भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है कि इस तरह के लोगों को एक्सपोज किया जाए। चूंकि आपने कहा है कि आप 1 मिनट बोलना चाहते हैं तो आप 1 मिनट बोलिएगा, क्योंकि मैं इस लोग से संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि हम राम राघव जी को इस पर 5 मिनट जरूर सुना, तो प्लीज आप 1 मिनट में समाप्त कर दीजिए। तो मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ कि वी हैव ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से 5 to 10 years, नॉट मोर देन दैट। ये लीडर्स जब चले जाएंगे, इट विल बिकम अफगानिस्तान, इट विल बी ए गैंग वॉर सिचुएशन। वो एक भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बना पाए हैं आदिवासी या वनवासी। Once these Telugus go, it will be
लाइक झारखंड जो आपने एक्सटॉर्शनिस्ट की बात की, वो अभी भी एक डिसिप्लिन पॉलिटिकल वायलेंस है। उस पॉलिटिक्स से हम सहमत नहीं हैं, बट इट इज गोइंग टू बिकम अ सेंसलेस गैंग वॉर वेरी सून। तो बस्तर को बचाना है तो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस आपस में हम दोनों लड़े, इस सबको पीछे रख के, ये एक नेशनल कैलेमिटी है, इस पर हमको साथ काम करने की जरूरत है। उसमें अनुज भाई की भी जरूरत है, शिक्षा की भी जरूरत है, एनजीओस की भी जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टीज को तो लीडरशिप लेना चाहिए। तो राम आनंद जैसे साथियों को, जो कि कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में उनके पास अनुभव है। तो ये विनती है, मैं बंगाल से नहीं हूँ भाई, मैं यहीं से हूँ, यही पैदा हुआ, यही बनूंगा, यही हमारी भूमि है। इस समस्या को हम बंगाली और आंध्र के लोगों ने बढ़ाया है, हमारी थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए मैं रामावत जी से सुनना चाहूँगा। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये 5 साल बाद नहीं रहेगी हमारे पास, हमको इस समस्या का समाधान ढूंढना है सर। थैंक यू सो मच। मैं पूरे तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जवाहर जी, लास्ट वर्ड जवाहर जी का भी नहीं हुआ। जवाहर फाइनल वर्ड। नो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाइज विद द यूथ। आप अगर उनको इनसे अलग कर देते हो और एक गैप क्रिएट करते हो बाय गिविंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, मुझे लगता है देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप द सोल्यूशन। ये जो बुजुर्ग हो रहे हैं जो इनके हिसाब से वो जाएंगे, दिस सोल्यूशन, ये विंडो कि वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस यूथ टू द नेशनलिस्टिक फर्म। अगर वो नेशनलिस्टिक हो गया और इनसे अलग कर दिया हमने, तो भी आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबने इस चर्चा को बहुत ही शांति से और बहुत संयम के साथ सुना, क्योंकि बातें कुछ इस तरह हो गई थी कि जिसमें माहौल थोड़ा गर्मा गया, लेकिन फिर भी अंत भला तो सब भला, इसलिए हम राम माधव जी को सुनते हैं। और थैंक यू वेरी मच। मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, यही से 2 शब्द कहूँगा। नक्सलिज्म का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज रहा है वो है उसका ओवरग्राउंड सोफिस्टिकेटेड सपोर्ट नेटवर्क। इसमें एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल वर्ग भी जुड़ा है, वो एक इसका जस्टिफिकेशन ढूंढने का कोशिश करता है। उस प्रकार का प्रयास में कभी आरएसएस भी कारण दिख सकता है, कभी बीजेपी भी कारण दिख सकता है, बट ऑनेस्टली इसके पीछे एक सॉलिड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, एक लिबरेशन की थियोलॉजी है, लिबरेशन का उनका कॉन्सेप्ट है। दंडकारण्य लिबरेटेड जोन है या और लिबरेटेड क्षेत्र बढ़ना, एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर नक्सलिज्म काम करता है। एक चीज से बचना बहुत आवश्यक है कि जो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट फ्रेमवर्क हम खड़ा कर देते हैं इनोसेंटली, हम उसको बहुत एक आइडियलिस्टिक पहनावा पहनाते हैं, उससे बचना चाहिए। ये किसी के भलाई में नहीं है, ना आपके भलाई में है, ना अक्सर के वो सोकाल आदिवासी जिनका चैंपियनिंग हम कर रहे हैं उनके भलाई में है। और जरूर नक्सलिज्म से डील करने के लिए समाज की जिम्मेदारी है, इस पर सब लोग, सभी पैनलिस्ट इशारा कर रहे हैं, तो उस पर काम होना चाहिए। पर ये मत भूलिए, स्टेट का बहुत बड़ा रोल होता है, और स्टेट का रोल यही होता है जो इस देश के संविधान और इस देश की कानूनी व्यवस्था और इस देश की एक संप्रभुता, उसके ऊपर एक हथियार उठाकर चैलेंज करता है, उसको हथियार से ही डील किया जाता है। स्टेट की जिम्मेदारी है, जिसी तरफ हमारे मॉडरेटर ने भी इशारा किया है। बल्कि हम सबका, जैसे मैं संघ का भी हूँ, मैं बीजेपी का भी हूँ, हम सबका यही विचार रहा है कि जितने विशेष प्रयास करके हमारे वनवासी समाज के लोग, जो भी हो, पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, उनके प्रभाव में ना जाए, इसके प्रयास हमको करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं और ज़्यादा करना चाहिए। ये बात सुधांशु जी कह रहे हैं, वो भी जरूर मैं स्वीकार करता हूँ, करना चाहिए। बट गलती से भी हमको इसका एक सोफिस्टिकेटेड वेरी अल्टरनेट जस्टिफिकेशन खड़ा नहीं करना चाहिए। वो विचार है, इस प्रकार का परिभाषा निर्माण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर आप लोग आरोप लगेंगे तो आप आरोप नक्सल है, फिर आप हल्ला करेंगे कि नहीं आप हमारे ऊपर, इससे भी हमको बचना चाहिए। तो दोनों प्रकार से हम सब मिलकर अल्टीमेटली यही करना चाहिए कि लोग उस आंदोलन से प्रभावित ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए। एक रेखांकित करके मैं छोड़ देता हूँ, इस देश में कोई राइट विंग एक्सट्रीमिज्म नहीं है।
Please don't use that as an equating thing कि हाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है तो राइट विंग एक्सट्रीमिज्म है, ऐसा नहीं है। एक विशेष विचारधारा से चलने वाला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया में कई देशों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में खड़ा हुआ। अपने अपने ढंग से देश उसको हैंडल कर रहे हैं, हम भी उसको हैंडल करें। इसमें कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी बात है, इसमें काम जरूर होना चाहिए, ज़्यादा काम करने का प्रयास होना चाहिए। थैंक यू। प्लीज बी ऑन स्टेज। उमेश बंसी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वे सुधांशु चौधरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अनुनय अग्रवाल जी से मैं अनुरोध करूंगी। अनुनय अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगी कि वे डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अंशु दवे जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे महेंद्र बुकिंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर, थैंक यू। उज्ज्वल दीपक जी से अनुरोध करूंगी कि वे अनुज शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर, थैंक यू। We also have members of India Foundation present in this event. So may I invite Mr. Aditya, Ms. Diksha, Mr. Siddharth and Ms. Soumya here on the dais and request so, thank you so much. Mr. Aditya, Ms. Diksha, may I request Ujjwal Deepak to propose vote of thanks. चर्चा को एकदम मैं बस 2 मिनट लेना चाहूँगा सबसे। जी प्लीज। कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट, इस थीम के साथ छत्तीसगढ़ यंग फोरम की एक कोशिश, एक नई पहल की शुरुआत हमने आज हमारे अपने राज्य छत्तीसगढ़ में की है। हम सो कॉल्ड यंग, राम माधव जी की डेफिनेशन है तो सारे मेंबर्स यंग नहीं रह गए, उनके साथ से नीचे कोई भी नहीं होता, बट इफ यू कैन कॉल अवरसेल्व्स यंग, हमारी जो जनरेशन है उन्होंने राज्य को बनते हुए देखा है, जन्म लेते हुए देखा है। और मुझे नहीं पता, मैं भारत के कई हिस्सों में रहा हूँ, भारत के बाहर भी रहा हूँ, बट वो अपनत्व जो मुझे अपनी जनरेशन के दौर में दिखाई देती है अपने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, मुझे कभी किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति में नज़र नहीं आई। हो सकता है मेरा अनुभव छोटा हो, बट मुझे लगता है कि एक स्पेशल फीलिंग है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है टुवर्ड्स स्टेट, एक अपनत्व की भावना है हमें। तो कुछ कुछ प्रयास हम लोगों ने कुछ अलग अलग कोशिशें की हैं, कुछ करने की, कुछ गुजरने की। मुझे लगता है आज के समय में जो सबसे कीमती चीज़ है वो है समय, वक्त। और राम माधव जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, युवाओं को जागृत करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति ना सही एक वैचारिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए उन्होंने अपना जो समय दिया है देश को, हम युवाओं का मैं चाहूँगा हर कोई एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, आज आपने अपना दिन भर समय अपने कीमती समय में से दिया है सर। वी आर ग्रेटफुल टू यू, हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदित्य को इंडिया फाउंडेशन से, दीक्षा, सौम्या, सिद्धांत, रोहित जो लगे रहे हमारे साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में। राम माधव जी का मैन पार्ट से रायपुर रिकॉर्ड समय में 5-5.5 घंटे में सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए उस समय पे आ जाए, यहाँ पर आए, थैंक यू सो मच। हमारी टीम के लोग जिन्होंने अथक प्रयास से, जसप्रीत भाटिया, रितेश जिंदल, उमेश बंसी,
पवन बरेटवार, अंशुल दुबे, अभिषेक पृथ्वी, अनुनय अग्रवाल, अभिषेक माहेश्वरी, और कुछ छूट गया तो मैं माफ़ी चाहूँगा। इन सब ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की, और आप सभी का मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ। आपने हमें समय दिया, इस कार्यक्रम को अटेंड किया। सारे पैनलिस्ट का, जिनको हमने कुछ लोगों को आखिरी समय में बताया कि आपको यहाँ पे इस पैनल का पार्टिसिपेंट होना है, लास्ट मोमेंट में कुछ कैंसिलेशन हुए। आप सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद, और आप सबको मैं लंच का इन्वाइट करता हूँ। और इसके बाद मैं एक छोटी सी भेंट राम माधव जी को देना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके अभी तक फोटोग्राफ एक छोटे से एल्बम के रूप में हमने सहेजा है। धन्यवाद। सारे ग्रुप के लोगों को मैं चाहूँगा, हाँ सर प्लीज एक स्टेज फोटोग्राफ दे सर, प्लीज। थैंक यू। Special thanks to Soumya ji. I forgot her name. Without her, this event was not possible. Founding members, please stage पे आ जाएं। Thank you, sir. मैं आगे करूँगा अभिषेक पृथ्वी की सौम्या जी को मोमेंटो देके स्वागत करें। सौम्या जी प्लीज गो बैक ऑन द स्टेज। एक शॉल। उज्जवल